Question is, show that vector a bar is equals to x square minus yz I cap. Then next is y square zx j cap. Third is z square minus xy k cap is irrotational, and if it is irrotational, and hence find scalar potential phi. Here, to show that vector a bar is irrotational, we have to take curl of vector a bar, that is nothing but delta cross a bar. So delta cross है तो cross, that is a determinant. Here I j k, and coefficient of I j k in delta is del by del x, del by del y, del by del z. वेक्टर ए के आप ए बार में आई जे के कोएफिशिएंट है, इट इज एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, देन हियर वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, एंड हियर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई. रोटेशनल शो करना है, मतलब यहाँ पे डेल्टा क्रॉस ए बार मस्ट भी जीरो होगा, बट जीरो डायरेक्टली मत लिखना, प्रॉपरली सॉल्व करके जीरो आता है वो शो करो. इट इज ए जीरो वेक्टर, क्रॉस है तो वी गेट वेक्टर, और यहाँ पे आई जे के ऑल कोएफिशिएंट जीरो आता है जीरो. सो सी इट आई क्या इन ब्रैकेट, अगर आई के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को स्किप करते हैं तो डेल बाय डेल वाई ऑफ दिस क्वांटिटी, इसको वाई से अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, सो हियर माइनस एक्स रिमेन रहेगा, डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो माइनस एक्स, and del by del z of this quantity, तो again we get minus x, but यहाँ पे minus of put करते तो here it is a plus x minus j cap, j के corresponding we have to skip row and column and simplify this minor, so del by del x of this quantity, so derivative partially with respect to x, so it is minus y, and del by del z of this quantity, so again it is a minus y, but again minus of minus, so plus y plus k cap del by del x of this term, so derivative with respect to x is minus z, and del by del y of this term, so it is a minus z again, so it is a plus z. So each coefficient of ijk is 0, so it is a 0 I cap, 0 j cap, 0 k cap, it is nothing but 0 vector. So delta cross a bar is equals to 0. This implies given vector a bar is irrotational. So this implies vector a bar is irrotational. And we know that when our given vector is irrotational, that means there exists a scalar potential phi. अब यहाँ से देखो ये जो scalar potential phi करते हैं ना, वो किस तरह से निकालते हैं, सिर्फ ध्यान देना, लिखना मत. There exists a scalar potential phi such that वो scalar potential phi कैसे रहेगा, gradient of this scalar potential phi is equivalent to vector a bar, such that delta phi is equals to vector a bar. Okay, it is nothing but definite. ये आपका जो नोट हमने लिख के दिया है वहां से आ रहा है. अब देखो इन दोनों की वैल्यूज को अगर हम पुट अप करते हैं तो वी नो दैट ग्रेडियंट ऑफ phi definition we know, and value of vector a bar is also given in given question. So if we put this values, then definition of gradient of phi is del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z k cap. Okay, it is a definition of gradient of phi left hand side is equals to vector I cap. Given vector I cap is x square minus yz I cap plus second is y square minus zx j cap, and third is z square minus xy k cap. And when we are saying two vectors are equal, two vectors कब equal रहते हैं, equality of two vectors की definition क्या रहती है,
आई जे के कोएफिशिएंट सेम होंगे। आई जे के कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो ये टू वेक्टर्स को हम इक्वल ही बता रहे हैं ना, डेल्टा फाइव और एक के आपको इक्वल बता रहे हैं। दैट मीन्स क्या होगा, आई का कोएफिशिएंट इक्वल होगा, ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये टू वेक्टर्स इक्वल बोल रहे हैं। सो इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें नोन हो जाएगा, इट इज ए डेल फाइव बाय डेल एक्स कोएफिशिएंट ऑफ आई इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के। सो हियर डेल बाय डेल एक्स ऑफ इट इज ए एक्स स्क्वायर minus yz. Okay, then coefficient of j, it is a del phi by del y is equals to y square minus zx. And similarly, third coefficient of k is del phi by del z is equals to z square minus xy. Now our task is find scalar potential phi. अगर वेक्टर irrotational था तो आपको scalar potential phi is a function of x y z, तो ये exactly find out करना है। अभी हमारे पास में फिलहाल क्या आ गया, partial derivative of phi with respect to x y z, मतलब exactly phi known नहीं है but इसका partial derivative known है। एंड वी नो दैट अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे उसी को सेम वेरिएबल से इंटीग्रेट करोगे तो वी गेट वैल्यू ऑफ फंक्शन, करेक्ट है। सो सपोज दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। पार्शियली ये जो है डेरिवेटिव कैसा है, पार्शियली, तो व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन 1 देन इट इज अगेन ए पार्शियल इंटीग्रेशन। सो हियर इफ वी इंटीग्रेट इक्वेशन 1 with respect to x, then we get phi is equals to, here phi equals to, the integration of this term is x cube by 3 minus x, y z is constant, so y z constant, integration of dx is x plus integrating constant, तो integrating constant देखो यहाँ पे simply c ना लिखते हुए we write it is a c of y z। इसका मतलब क्या होगा, c of y z का मीनिंग, c इंटू वाई जेड नहीं लिखा है, c ऑफ वाई जेड क्या होगा इसका मीनिंग, constant in terms वाई of जेड। y and z. यस इट इज c इज ए फंक्शन ऑफ वाई जेड, मतलब ये वाई जेड के फॉर्म में भी हो सकता है बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए अगर x वेरिएबल है तो बाकी सब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में y और z भी आ सकते हैं, तो ये मे भी क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ वाई जेड, नॉट व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग। मतलब यहाँ पे क्या हो गया था, फाई सोल्यूशन तो मिल गया था कि नो डाउट ये हमारा सोल्यूशन है, बट प्रॉब्लम इज अगर ये c y और z का फंक्शन है तो यहाँ पे मे भी कुछ टर्म एग्जिस्ट हो सकती है, तो इस टर्म को हमें फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट। अब इस टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिमेनिंग तीनों इक्वेशन को इंटीग्रेट करते जाएंगे। सो सिमिलरली अगर सेकेंड इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, सो सिमिलरली इंटीग्रेट इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 and 3 with respect to y and z respectively. Okay, suppose we integrate equation 2 partially, then we get phi is equals to integration of this term with respect to y is y cube by 3, then second term is minus x z y x y z plus integrating constant c2. Now c2 is a function of x or z, तो c2 में भी फंक्शन हो सकता है x एंड z का, y से कर रहे हैं तो y छोड़ के बाकी जो टर्म है थर्ड से आएगा phi is equals to z cube by 3 minus here it is a x y z plus c3, it is a function of x y, equation a b and c, a b and c to find value of c1 c2 c3। ना सीयर अगर तीनों को ऑब्जर्व करोगे तो इनमें सब में ये टर्म कॉमन है, तो एग्जैक्टली फाइव में ये टर्म कंटेंट रहेगा, बस इनमें क्या है कुछ टर्म डिफरेंट है ना। जब हम c1 वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ऑब्वियसली ये तीनों इक्वल ही है ना, तीनों भी क्या है फाइव इक्वल्स टू, सो c1 जब हम फाइंड आउट करेंगे ना तो वी हैव टू कंपेयर इक्वेशन a, या फिर क्या करोगे सीधा c1 को, अगर इजी वे बताती हूँ, c1 इज ए फंक्शन ऑफ yz। सो तीनों इक्वेशन में से जिस इक्वेशन में x नहीं है, विदाउट कंटेंट x वाला टर्म जहां पे है उस ये वो जो टर्म रहेगी दैट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ c1। और जब हम टर्म लिखेंगे ना तो फर्स्ट टास्क क्या रहेगा, इसको प्रॉपर्ली सुनना, c1 इज ए फंक्शन ऑफ yz, इसका मतलब है विदाउट कंटेंट x,
तो तीनों इक्वेशन में जिसके इसमें x नहीं है वो टर्म मतलब C1 का आंसर। ओके, अब इसमें एक टर्म रह सकता है इक्वेशन बी में, एक टर्म हो सकता है इक्वेशन सी में। सो जो जो डिफरेंट टर्म्स आएंगे, मतलब यहाँ से कुछ मिल गया, यहाँ पे लिख दो, सेकेंड टर्म से मिल गया, तो एडिशन के फॉर्म में हमें एक एक टर्म लिखते जाना है, जहां से भी हमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलेंगे विदाउट कंटेंट एक्स, उसको यहाँ पे मेंशन करना है यूजिंग प्लस प्लस प्लस। समटाइम्स ये हो सकता है कि इक्वेशन बी और इक्वेशन सी कंटेन सेम टर्म, मतलब यहाँ पे भी विदाउट कंटेन एक्स वाला टर्म है जेड, यहाँ पे भी विदाउट कंटेन एक्स का टर्म है जेड। सो व्हेन वी गेट रिपीटेड टर्म तो उसको सिंगल टाइम्स लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सी इज ए कांस्टेंट, और सी अगर कांस्टेंट है तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो वाई जेड है इन तीनों में सेम वैल्यू रहेगी। सेम वैल्यू तो ऑलरेडी इन दोनों में अगर सेम सेम टर्म मिल रही है तो नॉट नेसेसरी वी हैव टू राइट रिपीटेडली, जस्ट सिंगल टाइम लिखना है। ठीक है, रिपीटेड वैल्यू को सिंगल टाइम लिखना है, अगर डिस्टिंग आता है तो फिर प्लस प्लस करते हुए नेक्स्ट टर्म को ऐड करते जाना। नाउ सी हियर C1 is a term without content x. So इक्वेशन 1 में कोई विदाउट कंटेंट x का टर्म नहीं है, स्किप कर दो। यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट टर्म है इट इज ए y क्यूब बाय 3। तो फर्स्ट टर्म क्या है, विदाउट कंटेंट x, तो मतलब ये C1 का आंसर हो सकता है, इट इज ए y क्यूब बाय 3। सेकेंड टर्म कंटेंट x, स्किप कर दो, ये तो कांस्टेंट है, रेट लेना ही नहीं है, और ऑलरेडी इसमें x कंटेंट नहीं है। Now here z cube by 3 without content x है, so थर्ड इक्वेशन से लिख रहे हैं यहाँ पे प्लस z cube by 3। नेक्स्ट टर्म कंटेंट x, स्किप कर दो, तो ये हो जाएगा x1 का C1 का आंसर। क्लियर है C1 कैसे फाइंड आउट किए। सिमिलरली C2 फाइंड आउट करना है। C2 का आंसर बता सकते हैं क्या, चेक करो। C2 इक्वल्स टू क्या आएगा, x cube by 3 by plus 3 plus z cube by z cube 3. by 3. Yeah. And C3 equals to X cube by 3 plus y cube by 3. yeah. C3 equals to x cube by 3 plus y cube by 3। तीनों की वैल्यूज को फाइंड आउट किए, किसी एक वैल्यू को पुट कर दो और फाई की वैल्यू निकालो, और देखो जब आपका आंसर करेक्ट है ना, ये तीनों अगर आपने करेक्ट निकालोगे तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको सेम फाई की वैल्यू मिलेगी। जैसे C1 की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट अप करो तो फाई इक्वल्स टू, व्हेन वी पुट C1 इन इक्वेशन ए तो वी गेट फाई इक्वल्स टू x क्यूब बाय 3 प्लस y क्यूब बाय 3 प्लस z क्यूब बाय 3 देन माइनस x y z। ये इक्वेशन ए में पुटअप किया तो ये आ गया। आप इक्वेशन बी में C2 की वैल्यू पुटअप करके देखो, या फिर इक्वेशन सी के अंदर ये C3 की वैल्यू को पुटअप करो तो वी गेट सेम आंसर। अगर सेम आ रहा है इसका मतलब है ये आंसर हमने निकाला हुआ करेक्ट है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।